Hello everyone, you are watching Naresh IAS Academy YouTube channel. I am going to discuss some model questions targeting UPSC exams like CDS, NDA and Assistant Commandant. We have provided so many questions for these exams in the different subjects, and you may get these questions from our website Naresh IAS Academy. Here there are some questions from the section of medieval history. The question number 1 is, which Sultan issued the first silver tanka in Delhi Sultanate? दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम चांदी का टंका किस सुल्तान ने जारी किया? The right answer is B. This is the Iltutmish. Iltutmish was the Sultan under slave dynasty, and who issued the first Arabian coins, and this was the silver coins. Next question, during which Sultan did Genghis Khan make the first Mongol invasion of India? भारत पर प्रथम मंगोल आक्रमण चंगेज खान ने किस सुल्तान के समय किया था? The right answer is D. Sultan Iltutmish. When the Iltutmish was ruling over the Delhi during the 1210 to 1236, that time the Mongol invader Changiz Khan, also called the Genghis Khan, invaded over India. However, through the diplomacy, Iltutmish avoided this invasion. भारत पर पहला मंगोल आक्रमण चंगेज खान ने किया था, जिस समय इल्तुतमिश दिल्ली पर शासन कर रहे थे. बड़ी बुद्धिमानी कूटनीति के साथ उन्होंने चंगेज के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की. Which Sultan of Delhi imposed grazing and the house tax on his people? दिल्ली के किस सुल्तान ने चराई कर एवं घरई कर अपनी प्रजा पर लगाए? The right answer is B. This was the Alauddin Khilji, Sultan under the Khilji dynasty during the 1296 to 1316. Alauddin Khilji, who declared himself as the Alexander II and who introduced so many reforms first time in the Delhi Sultanate, and this was one of his experiment. अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दिल्ली पर 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया, उसने दूसरा सिकंदर बनने की उपाधि धारण की और दिल्ली सल्तनत में कुछ ऐसे नवीन प्रयोग किए. उनमें से एक प्रयोग यह भी था. Which of the following Sultan completed the construction of कुतुब मीनार? निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया? The right answer is B. This was the Iltutmish. Qutub Minar started by the Qutbuddin Aibak, the first Sultan of Delhi Sultanate or the founder of slave dynasty. But before the completion of the building, Qutbuddin Aibak was died, and later it was completed by the Iltutmish, or finally it was constructed as the fifth story by the Firuz Shah Tughlaq. With which Sufi saint did Sultan Ghayasuddin Tughlaq of Delhi disputes? दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने किस सूफी संत के साथ विवाद किया था?
Right answer is B. This was the Nizamuddin Auliya, Sufi saint under the Chishti tradition and the founder of Tughlaq dynasty. Ghiyasuddin Tughlaq made some disputes with the saint. तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक ने अपने कुछ कार्यों से चिश्ती परंपरा के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को नाराज किया और उनके साथ विवाद उत्पन्न किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सूफी संत के श्राप से गियासुद्दीन तुगलक की शीघ्र ही मृत्यु हो गई और उनका शासनकाल केवल 5 वर्ष तक रहा। Which Sultan started the दाग एंड चेहरा सिस्टम टू इम्प्रूव द आर्मी? दाग एवं चेहरा प्रथा सेना में सुधार के लिए किस सुल्तान ने आरंभ की? राइट आंसर इज सी, दिस वाज द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी लेड फाउंडेशन ऑफ द रिफॉर्म्स इन सल्तनत आर्मी and this was the branding of horses or description of the soldiers. अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में सेना में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, उनमें से एक कार्य यह भी था। Which Sultan of Delhi had declared himself as खलीफा और कैलिफेट? दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? Right answer is B. This was the Mubarak Khilji, son of Alauddin Khilji, declared himself as Khalifa and he refused to accept the domination of the caliphs. मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया जो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे और इन्होंने भारत के बाहर इस्लामी दुनिया के प्रमुख खलीफा की सत्ता को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया। द बुक रिहला वॉज रिटन बाई विच फॉरेन ट्रेवलर इन दिल्ली सल्तनत? रिहला नामक ग्रंथ दिल्ली सल्तनत में किस विदेशी यात्री के द्वारा लिखा गया? द राइट आंसर इज ए, दिस वॉज द इब्न बतूता। He was the African traveler, belongs to the Morocco country in African continent and who visited India during the Muhammad bin Tughlaq and stayed for some years in his court. Finally written the Rihla in Arabian language. रिहला नामक ग्रंथ अरबी भाषा में इब्न बतूता ने लिखा, जो अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को देश का निवासी था। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय उसने भारत की यात्रा की थी। Which Persian scholar first started using the words of Urdu language? किस फारसी विद्वान ने सर्वप्रथम उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग आरंभ किया? The right answer is C. This was the Amir Khusro, was the Persian scholar during the Delhi Sultanate, who first started the Hindi verse in his poetry and the Urdu terms also. तो अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत में फारसी भाषा के महान विद्वान और कवि थे और इन्होंने गुलाम वंश एवं खिलजी वंश के समय महत्वपूर्ण कार्य किया है, कविता लेखन, कव्वाली गायन पर और संगीत से संबंधित वाद्य यंत्रों पर। और उन्होंने सबसे पहले हिंदी शब्दों का और उर्दू शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि वो मुस्लिम विद्वान थे और हिंदी शब्दों का प्रयोग करना उस समय एक बड़ी बात थी। Which तुर्क इन्वेडर डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी? किस तुर्क आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था?
The right answer is D. This was the Bakhtiyar Khilji, was the commander of Muhammad Ghori. When the Qutbuddin Aibak started rule from the Delhi Sultanate, Bakhtiyar Khilji invaded the Bihar and Bengal region and he destroyed the Nalanda University and the Bikramsala University. बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का ही एक कमांडर था। मोहम्मद गौरी की 1206 में मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर प्रथम सुल्तान के रूप में शासन आरंभ किया और उस समय बख्तियार खिलजी ने बिहार बंगाल पर आक्रमण कर वहां नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली फर्स्ट मेड द डिपार्टमेंट ऑफ द आर्मी दीवाने अर्ज। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सेना का विभाग दीवाने अर्ज बनाया था? The right answer is C. This was the Balban. Balban was sultan under the slave dynasty during 1266 to 1286, and Balban applied a strict policy against his protesters and who emphasized over the organization of Sultanate army. तो बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के अधीन एक सुल्तान थे जिन्होंने 1266 से 1286 के मध्य शासन किया। सल्तनत की सेना के संगठन के लिए उन्होंने सबसे पहले सेना का यह विभाग बनाया था। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इश्यूड द फर्स्ट टोकन करेंसी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्राएं जारी की? The right answer is B. This was the Muhammad bin Tughlaq, Sultan under the Tughlaq dynasty, and who is also called the Mad Sultan, who issued the first token currency, and these currencies were issued in silver, copper, and the bronze metal. मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश के एक सुल्तान थे, उन्होंने सबसे पहले इस प्रकार की मुद्राएं जारी की और ये मुद्राएं कांसा, तांबा और चांदी धातु में जारी की गईं और इन मुद्राओं का मूल्य उन्होंने सोने के बराबर रखा, सोना धातु के बराबर। Who was the commander of Akbar's army in the second battle of Panipat in 1556? 1556 के पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना का सेनापति कौन था? The right answer is D. This was the Bairam Khan. Bairam Khan was the Persian commander who arrived with Humayun in India in 1555. When the Akbar, the son of Humayun, fought Battle of Panipat II against the Muhammad Adil Shah Suri, so mainly the battle was led by the Bairam Khan. तो बैरम खान ईरान का एक सिया कमांडर था जो अकबर के पिता हुमायूं के साथ भारत आया था 1555 में। और हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर जब सम्राट बने तो 1556 में उन्होंने मोहम्मद आदिल शाह सूरी के विरुद्ध यह युद्ध किया। इसकी मुख्य कमान बैरम खान ने ही संभाली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड इट्स ट्रेड इन इंडिया विद द परमिशन ऑफ विच मुगल एम्परर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना व्यापार किस मुगल सम्राट की अनुमति से आरंभ किया? द राइट आंसर इज बी. दिस वाज द जहांगीर. Jahangir, the Mughal emperor, son of Akbar, who ruled over India during 1605 to 1627 and who granted permission to East India Company for trading. मुगल सम्राट जहांगीर जो अकबर का पुत्र था और उसने 1605 से 1627 के मध्य भारत पर शासन किया, उसने ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। Who wrote हुमायूंनामा? हुमायूंनामा की रचना किसने की? The right answer is B. This was the गुलबदन बेगम.
गुलबदन बेगम was the daughter of Mughal Emperor Babur, and Gulbadan Begum wrote the Humayunama during the Akbar, when the Akbar insisted him to write the such text. हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन और बाबर की पुत्री थी। अकबर के समय में गुलबदन बेगम ने इस ग्रंथ को लिखा जब अकबर ने उनको इस कार्य के लिए बाउंड किया था। इन विच वॉर डिड बाबर यूज एम्यूनिशन एंड गन पाउडर फर्स्ट? बाबर ने गोला बारूद और तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? The right answer is C, First Battle of Panipat. The First Battle of Panipat fought between Babur and Ibrahim Lodi in 1526. However, Babur used the gunpowder in 1519 at the Bazaar or Bhira Fort, northwest frontiers, but systematically Babur used this techniques in the Battle of Panipat. बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इस युद्ध से पहले भी बाबर ने गोला बारूद तोपखाने का प्रयोग किया था बाजौर और बेरा के किले पर 1519 में, लेकिन बहुत व्यापक रूप में सिस्टमैटिक तरीके से बाबर ने इसका प्रयोग पानीपत के पहले युद्ध में किया जिसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स वॉज imprisoned by बाबर? बाबर ने निम्न में से किस संत को बंदी बनाया था? राइट आंसर इज गुरु नानक, बी आंसर। गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म एंड एट अ इमीडिएट इंसिडेंट विच टुक प्लेस एट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बाबर imprisoned him, but later on बाबर रिलीज्ड हिम। बाबर ने गुरु नानक देव को बंदी बनाया था। गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक हैं, उत्तर पश्चिमी सीमा पर गुरु नानक देव जब अपने भ्रमण के लिए गए हुए थे तो एक घटना के कारण बाबर उनसे नाराज हुआ और गुरु नानक देव को बंदी बना लिया और बाद में उन्होंने गुरु नानक को छोड़ दिया था। आइन ए देसाला मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, आइन ए देसाला पद्धति किसके द्वारा लागू की गई? द आंसर इज बी, दिस वॉज द टोडरमल। टोडरमल वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्परर अकबर हु इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ रेवेन्यूज और टू इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू। टोडरमल जो अकबर का वित्त मंत्री था, उसने भूमि सुधार के लिए और राजस्व को बढ़ाने के लिए अकबर के समय में इस पद्धति को लागू किया था। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ जात एंड सवार वर देयर इन मनसबदारी सिस्टम? मनसबदारी प्रथा में जात एवं सवार की कितनी श्रेणियां थी? The right answer is A. There were the three categories under the Jat and Sawar system. The system was introduced by the Mughal Emperor Akbar, and this was an integrated system of army and the civilians. तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा को आरंभ किया था। यह सेना और सिविल सेवा दोनों का एक मिश्रण था और इसमें सभी अधिकारियों की 3 प्रकार की श्रेणियां अकबर के द्वारा बनाई गई थी। इन विच ईयर डिड अकबर अबोलिश द जजिया टैक्स ऑन हिंदूज? अकबर ने कौन से वर्ष में हिंदुओं पर जजिया कर को समाप्त किया? द राइट आंसर इज बी, दिस वाज 1564. अकबर थ्रू हिज religious experiment or
सुलह कुल रिलीजियस हार्मनी लिफ्टेड द जजिया टैक्स ऑन हिंदू 1564। अकबर ने अपने धार्मिक सुधारों और सुलह कुल की नीति के तहत हिंदुओं पर जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था। What was the original name of तानसेन, द कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ अकबर? अकबर के दरबारी संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम क्या था? Right answer is C. This was the Ramtanu Pandey, the original name of Tansen, and who was the great musician in the court of Akbar. अकबर के दरबार का महान संगीतज्ञ था। By what name was the Ramayana translated in the time of Akbar? अकबर के समय में रामायण का अनुवाद किस नाम से किया गया? The answer is B. Nargistan. Nargistan was the translated titles of the Ramayana. Akbar showed his keen interest in the Hindu classical literature. अकबर के समय में हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद आरंभ हुआ और रामायण का अनुवाद नरगिस्तान शीर्षक से किया गया था। अकबर ने धार्मिक मामलों में मेजरनामा कब जारी किया था? When was the मेजरनामा issued in religious matters by Akbar? Right answer is B. In 1579, through the मेजरनामा, Akbar declared himself as the supreme imam or imam-e-adil, and Akbar acquired the authorities in religious matters to मेजरनामा, the infallible decree, nobody could challenge or criticize this. तो अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के निष्कर्ष के रूप में मेजरनामा जारी किया 1579 में फतेहपुर सीकरी से, और इसके द्वारा अकबर धार्मिक मामलों में सर्वोच्च इमाम और आदिल बन गया। आफ्टर being defeated by Shershah, Humayun stayed in the court of which king as a refuge for 15 years. शेरशाह से पराजित होने के बाद हुमायूं 15 साल तक शरणार्थी के रूप में किस राजा के दरबार में रहा? The right answer is A. This was the Iran Persian ruler Shah Tahmasp, who patronized or provided shelter to हुमायूं आफ्टर डिफीटिंग द शेरशाह। तो शेरशाह ने भारत के मुगल सम्राट हुमायूं को 2 युद्धों में पराजित किया, चौसा का युद्ध और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, और इसके बाद हुमायूं 15 साल तक भारत से बाहर रहा शरणार्थी के रूप में, और ईरान के राजा ने इसको शरण दी थी। Which was the capital of शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी की राजधानी कौन सी थी? The right answer is B. This was the Sasaram. Sasaram in Bihar, Anawar district of Bihar. Sasaram was the capital of Shershah Suri. Which silver coin was issued by Shershah Suri in medieval period? शेरशाह सूरी ने मध्यकाल में कौन सा चांदी का सिक्का जारी किया था? The right answer is C. Rupee. The rupee in the form of silver coins first issued by Shershah Suri, and later it was adopted by the British government and issued as a paper currency. तो शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के के रूप में रुपए को जारी किया, और अंग्रेजी सरकार ने बाद में इसको एक कागज के नोट के रूप में जारी किया, और आज यह भारत की मुद्रा बनी हुई है। Where did Akbar build जोधाबाई's पैलेस? अकबर ने जोधाबाई का महल कहां बनवाया था?
राइट आंसर है ये एट द फतेहपुर सीकरी. अकबर मेड फतेहपुर सीकरी एज हिज कैपिटल वेयर ही बिल्ट द जोधाबाई पैलेस. जोधाबाई was the wife of Akbar. Akbar married with the Jodhabai and she was the princess of Amir states. The Upanishad were translated into Persian by which son of the Shahjahan? शाहजहां के किस पुत्र ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? The right answer is D. This was the Darasiko who translated 52 Upanishads in Persian with the title of Great Secret. तो शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारासिको ने 108 में से 52 उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया सिर ए अकबर के नाम से. The time of which Mughal ruler is called the golden age of painting. किस मुगल शासक का समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? The right answer is A. This was the Jahangir. Mughal Emperor Jahangir made important contribution in the development of paintings and the paintings reached at its climax and paintings got all the dimensions of its development. जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ. चित्रकला ने अपने सभी आयामों को पूरा किया, इसलिए जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है. Which मुगल जनरल had forced शिवाजी into the treaty? शिवाजी को किस मुगल सेनापति ने संधि के लिए बाध्य किया था? The right answer is B. This was the Mirza Raja Jai Singh. Mirza Raja Jai Singh sent by Mughal Emperor Aurangzeb against the Shivaji, and Mirza Raja Jai Singh made pressure over Shivaji for surrender in 1665. शिवाजी के विरुद्ध मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था और जयसिंह ने 1665 में शिवाजी पर दबाव बनाया आत्मसमर्पण के लिए, और ऐसा शिवाजी महाराज ने किया और दोनों के बीच में पुरंदर की संधि हुई. Who was the Mughal Emperor of India at the time of नादिर शाह invasion? नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? The right answer is D. This was the Muhammad Shah, also called the Rangila. And that time Mughal Empire was gradually declining, and that time the Persian Afghani ruler नादिर शाह invaded India. तो नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी कहा जाता है, उसके समय भारत पर आक्रमण किया 1739 में 1739 में. Where was the peacock throne located by the शाहजहां? शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन कहां स्थित था? The right answer is B. At the दीवाने खास in the Red Fort, Delhi. दिल्ली के लाल किले में शाहजहां ने दीवाने खास बनवाया था, जहां पर ये पीकॉक थ्रोन रखा हुआ था. बाद में नादिर शाह ने जब अटैक किया तो वह पीकॉक थ्रोन को अपने साथ ईरान ले गया. Which मुगल एम्परर हैड वन बीजापुर एंड गोलकोंडा किंगडम? बीजापुर एवं गोलकोंडा राज्य को किस मुगल सम्राट ने जीता? The right answer is A. This was Aurangzeb, Mughal emperor, who conquered Bijapur in 1686 and Golconda in 1687. These are some sample questions through which you can check your preparation.
such kinds of question may be asked by the UPSC in the different exams. On the different subjects, you may get so many questions, model question, practice question through our website Naresh IAS Academy, and we are providing some courses or offline classes targeting the UPSC exam, so you may contact. Thank you.